Now we will try and understand the second thing that we have to do today. We have to understand the basics of capital market. देखो ये वाला पार्ट जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं, this is very very important for you to understand the entire lecture of capital market. अगर आप ये चीज नहीं समझते हो, if you don't understand this thing now, अगर आप ये नहीं समझते हो जो मैं आपको अगले I think 45 minutes to 1 hour I'll take just to explain you the basics of how companies work. अगर आपको ये टर्म्स पता हैं, अगर आपको ये टर्म्स पता है, then it's okay. अगर आपको ये टर्म्स पता है तो इट्स फाइन. If you don't know these terms, please listen to this very carefully. Without understanding these terms this is what I'm going to show you now. अगर आप ये टर्म्स आपने नहीं समझी, तो आगे आपको कैपिटल मार्केट्स का लेक्चर समझ नहीं आएगा. यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर ऑन कैपिटल मार्केट्स. ठीक है, बट आज भी हम एग्जैक्टली वही पोमोडोरो फॉलो कर रहे हैं. थोड़ा सा मैंने ओवरशूट कर दिया है. वी हैव स्टडीड नाउ फॉर 1 hour 8 minutes. We started at 5 o'clock as per this watch. It's now 6:08. So I'll give you a 6 minutes break. 6 minutes का मैं आपको एक ब्रेक देता हूँ. आराम से ब्रेक लो, टेक योर टाइम, रिलैक्स. उतने ही फोकस से वापस आना. We'll finish basics of capital markets today. I will leave you around 7 o'clock. ठीक है, आपका होमवर्क बहुत है वीकेंड पे. You have a lot of homework. Watch all those movies जो मैंने आपको बताई हैं, and then we'll see each other on Monday. 6 minutes break. Take your time, relax. वापस आके, because completely different topic है. Now we are switching completely to a different topic. So please take a break and then come. This is a completely different discussion. All right, चलिए, let's now talk of capital markets. देखो, नोट से कुछ नहीं पढ़ेंगे आज. We'll just understand the basics. ठीक है, ताकि हम मंडे को एटलीस्ट कैपिटल मार्केट खत्म कर सकें. दिस 1 hour is very very important. If you have some friends who are not attending this lecture today because it's Saturday, तो उन्हें प्लीज बोलना कि ये रिकॉर्डिंग देख के आए when they come to discuss capital markets. ठीक है, चलो, let me pick a few founders. आदिल, अदिति, सौम्या. ठीक है, let's say Adil, Aditi and Soumya. These three people start a company. They start a company. इस कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड. इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी कॉल्ड ABC प्राइवेट लिमिटेड. और क्या बेचेगी ये कंपनी? दिस कंपनी सेल्स पेन्स. Right now, these three are the people who helped start this company. So they will be called the founders of this company. These three will be called the founders of this company. Okay, let's say that all three of them had equal shares. In आदिल के पास 33% shares थे. Of course it will be 33.33. अदिति के पास 33.33% shares थे और सौम्या के पास 33.33% shares थे. All three had 33% share. 33.33 मैं decimals ignore कर रहा हूँ. ठीक है, all three of them had equal shares. Right now they decided, and they can decide by themselves, they decided
that the value of one share is 10 rupees. कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है एंड हमारी कंपनी में टोटल शेयर्स इन माय कंपनी विल बी 10,000 शेयर्स और लेट्स से हाँ ठीक है, देयर विल बी 10,000 शेयर्स, दैट विल बी द टोटल शेयर्स ऑफ आवर कंपनी. अब ये दोनों चीजें डिसाइडिंग बोथ दीज थिंग्स दैट वन शेयर इज वर्थ 10 रुपीज एंड द टोटल शेयर इज वर्थ total number of shares is 10,000, value of one share is 10 rupees. ये डिसाइड करना, this is totally up to the founders. आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप अपनी कंपनी में जो रखना चाहो वो रख लो, you keep it as you want. इन लोगों ने ये डिसाइड किया है, कोई भी डिसाइड कर सकता है, जैसे चाहो वैसे डिसाइड कर सकते हो. आप चाहे तो 1 लाख शेयर बना लो, आपकी मर्जी है. इट्स अ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर. Total shares of the company are 10,000. Value of one share is 10 rupees. इस कंपनी के सारे शेयर्स मान लो मुझे खरीदने हो. I want to buy all the shares of this company. I want to. आज कंपनी स्टार्ट हुई, इन्होंने स्टार्ट करी, मैंने कहा मुझे ये कंपनी खरीदनी है आज. Today I want to buy this company. How much money will I have to pay? मेरे को सारे शेयर्स खरीदने हैं. हाउ मच मनी विल आई हैव टू पे? ₹1,00,000. I will have to pay ₹1,00,000. Why? Because 10,000 into 10 is equal to ₹1,00,000. This ₹1,00,000 is right now known as the valuation of this company. The other word for valuation is market cap or market capitalization. Valuation or market capitalization. This is the valuation of this company right now. कंपनी स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है? मैं आपको कोई बड़ी टर्म्स आज नहीं बता रहा. ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो हम मंडे को देखेंगे, बट ये प्रोसीजर समझ लो. कंपनी स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है? आदिल डिपॉजिट्स 33,000 रुपीज. एक्चुअली जस्ट टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन, हम आदिल के शेयर्स 34% कर देते हैं. लेट्स मेक आदिल शेयर्स 34%. आदिल के पास 34% है और अदिति और सौम्या के पास 33% है. तो अब क्या होगा? कंपनी का अकाउंट बनेगा जिसमें आदिल एक कंपनी अकाउंट में पे करेगा 34,000 रुपीज. दिस विल कम फ्रॉम आदिल. 33,000 विल कम फ्रॉम अदिति. 33,000 विल कम फ्रॉम सौम्या. सॉरी, ये तीनों लोग इतने पैसे कंपनी अकाउंट में डालेंगे. 1,00,000 की वैल्यू थी, 1,00,000 में से 34,000 दिए आदिल ने, तो आदिल के हो गए 34% शेयर्स. 1,00,000 में से 33,000 दिए अदिति ने, तो अदिति के हो गए 33% शेयर्स. सौम्या ने दिया 33,000, 33% शेयर्स हो गए सौम्या के. आज इस कंपनी का बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. कंपनी हैज नॉट स्टार्टेड इट्स बिजनेस. दिस इज द वैल्यूएशन. और कंपनी लेकिन स्टार्ट हो गई, कंपनी रजिस्टर हो गई है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, इन्होंने पेन्स बेचे. इन द फर्स्ट ईयर दिस कंपनी sells pens worth rupees 10 lakhs. In the first year, this company sells pen worth rupees 10 lakhs and it makes a profit. कंपनी बनाती है प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख. इनकी कंपनी में प्रॉफिट बनता है 1 लाख का और ये 10 लाख के पेन बेचते हैं. नाउ द थ्री ऑफ देम थिंक दैट देखो यार, अभी हमारे पास 1 लाख रुपीज आ गए हैं, हम एक और फैक्ट्री बना सकते हैं पेन्स की. हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे. अभी एक फैक्ट्री लगी, फिर कुछ शॉप्स में हमारी रीच बढ़ी, हमने 10 लाख के पेन्स बेचे. राइट, अब मेरे पास 1 लाख रुपीज हैं. लेट मी गेट सम मनी
let me get some money and expand this company. कंपनी बढ़िया चल रही है, हमने फर्स्ट ईयर में ही 10 लाख रुपीस के गुड्स बेच दिए हैं और हमने 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट भी कमा लिया है. दिस कंपनी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ये कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है, ये कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है. तो लेट मी गो एंड गेट सम मनी फ्रॉम समबडी. I will take what the founders are thinking. The founders are thinking that we will get some money from someone. Using this money, we will expand the business. When we expand the business, all of us will get more rich. Even the person who gives us money will get more rich. One person to get them money. One idea rather to get them money is to get a loan. एक तो ऑप्शन है कि वो लोन ले लें, पैसा लें बैंक से और वो अपनी कंपनी को ग्रो कर ले. बट दे से कि यार देखो हम तीनों अभी यंग हैं. The three of us are fairly young. We might not be able to repay the loan. So rather than taking loan, let us sell some of the shares of our company. So they are not going for loan financing. They are going now for equity based financing. Equity मतलब shares. Equity based financing. Equity based financing. Right. वो कहते हैं कि सर what I'll do is they go and meet an investor. एक इन्वेस्टर से मिलते हैं. इसलिए मैं आपको कह रहा था शार्क टैंक का एपिसोड देखो. इन्वेस्टर को बोलते हैं सर इफ यू गिव अस 10 लाख रुपीस, हमारी कंपनी में तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है. इफ यू गिव अस 10 लाख रुपीस, अगर आपने मुझे 10 लाख रुपीस दे दिए तो पता है क्या होगा. अगर आपने मुझे 10 लाख रुपीस दे दिए, मैं इस कंपनी को I will take this company to new heights. I will take this company to amazing heights. मैं इस कंपनी को इतना बड़ा कर दूंगा कि अगले साल ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगी. This company will do amazing profit. It will, grow a lot. और आपके भी पैसे बन जाएंगे. इन्वेस्टर कहता है बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो. If I give you 10 lakh rupees, I have seen your company's balance sheet. सारा डेटा दिखाया जाएगा कि अच्छा इतने कस्टमर्स थे, ऐसे हमने मार्केटिंग करी वगैरह वगैरह. इफ यू गिव अस 10 लाख रुपीस, डेफिनेटली दिस कंपनी कैन ग्रो फर्दर. बट 10 लाख रुपीस में तुम मुझे कितने परसेंट शेयर दोगे? व्हाट परसेंटेज ऑफ ओनरशिप विल यू गिव टू मी? अब ये जो हमारे फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स कहते हैं कि सर 10 लाख रुपीस के लिए हम आपको 10% शेयर्स देंगे. फाउंडर कहता है हम आपको 10 लाख रुपीस के लिए 10% शेयर्स देंगे. इन्वेस्टर कहता है नहीं, मैं 10 लाख रुपीस तो दूंगा बट मैं 20% शेयर्स लूंगा. तो ये बात अग्री हो जाती है. दिस थिंग इज अग्रीड दैट नाउ इन्वेस्टर विल गिव देम 10 लाख रुपीस बट ही विल गेट 20% शेयर्स. ठीक है. सो राइट एट द मोमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन somebody has now purchased 20% shares of this company. किसी ने अभी 1 सेकंड पहले इस कंपनी के 20% शेयर खरीदे हैं for 10 lakh rupees. What is the valuation of this company now? 20% shares are available for 10 lakh. 20% shares are available for 10 lakh. 100% shares are available for 20% shares are available for 10 lakh. 100% are available for 50 lakh. Company gets now a new valuation. Company, after this transaction happens, a new valuation of the company is finalized. एक new valuation हो गई. How new valuation? Because अब कंपनी के 20% शेयर 10 लाख रुपए में बिके हैं. 20% shares are now sold for rupees 10 lakh. So new valuation of the company is 50 lakh rupees. अब whose shares will the investor get? Next question is, investor को किसके शेयर मिलेंगे? इन 20% में से किसके शेयर मिलेंगे? Answer is किसी के भी नहीं. Nobody will give their own shares. देखो पहले क्या था? पहले था बिफोर ट्रांजैक्शन. मैं यहां लिखता हूं बिफोर ट्रांजैक्शन. Adil had 3,400 shares. Aditi had 3,300 shares.
and Soumya had 3,300 shares. ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है. अब आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग फॉर 1 सेकेंड, जस्ट कैलकुलेटिंग फॉर 1 सेकेंड, ताकि मुझे ये चीज ताकि आई कम अप विद अ नंबर दैट इज easy for you to understand also. Just give me a second. I'm just calculating कि मैं क्या नंबर यहाँ पे लिखूं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे. Just give me 1 second. ओके ओके, अब देखो, कंपनी के टोटल शेयर्स थे 10,000. बिफोर दिस ट्रांजैक्शन कंपनी हैड टोटल 10,000 शेयर्स. दिस वाज आवर डिस्ट्रीब्यूशन. यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक तो बात क्लियर है. यहां तक बात क्लियर है. अभी ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, अभी ट्रांजैक्शन हुई नहीं है. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट विल हैपन, ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड. ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेस्टर के पास 20% शेयर्स होने चाहिए. नाउ वी नीड टू बी इन अ सिचुएशन वेयर इन्वेस्टर नीड्स टू हैव 20% शेयर्स. ठीक है, इन्वेस्टर के पास 20% शेयर्स होने चाहिए. अर्लियर टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी वर 10,000. अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना व्हाट विल हैपन. पहले बिफोर द ट्रांजैक्शन कंपनी के टोटल शेयर्स थे 10,000. 34 प्लस 33 प्लस 3,300, 10,000 शेयर्स थे. नाउ आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, कंपनी इशूज 2,500 न्यू शेयर्स टू इन्वेस्टर. Company issues 2,500 new shares. 2,500 new shares are created. 2,500 नए शेयर क्रिएट हुए. आप कितने भी शेयर क्रिएट करो, आपकी मर्जी है. Company issues 2,500 new shares to investor. Now what is the shareholding pattern afterwards? और इन तीनों का कुछ चेंज नहीं होता. Nothing changes for these three. After what happens? आदिल का तो सेम है 3,400, अदिति का भी सेम है 3,400, सौम्या का भी सेम है 3,400, 3,300, and investor now has 2,500. ठीक है. In this case, what are now the total shares of the company? अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? इन तीनों के तो एज इट इज हैं, प्लस ये 2,500 और जुड़ गए. 12,500 शेयर्स हैं कंपनी के. अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. इन्वेस्टर के पास कितने हैं? 2,500 हैं. Investor has 2,500. Investor has 2,500 out of 12,500. Out of 12,500, investor now has 2,500. तो इन्वेस्टर के पास कितने हैं? इन्वेस्टर के पास 20% है. इन्वेस्टर को 20% मिल गए. इन्वेस्टर को 20% मिल गए. ठीक है. इन तीनों के पास अप्रोक्सीमेटली 27% बच गया है. थोड़ा एक आधा पॉइंट डेसिमल का फर्क होगा. हाउ मच डज आदिल हैव नाउ? अब आदिल के पास कितने हैं? आदिल स्टिल हैज 3,400, बट आउट ऑफ 12,500, तो ही हैज अबाउट 27.2%. ठीक है. अदिति के पास कितने हैं? अदिति के पास है 3,300 out of 12,500. She also has approximately 27%, and Soumya also has approximately same number, 25-26% के आसपास इनके भी शेयर्स हैं. Right? They also have 27-26. I think this will come out to be 26.4 each. Okay. She will have 26.4%, and Soumya will also have 26.4%. ट्रांजैक्शन समझ आई? कंपनी इशूड न्यू 2,500 शेयर्स.
What is the valuation of the company? 50 lakh. Total shares of the company 12,500. What is the meaning of valuation now? अगर मुझे ये 12,500 सारे शेयर खरीदने हैं, if I want to buy all, मैं तो अलग यहां खड़ा हूं, मेरे को अगर ये सारे शेयर खरीदने हैं 12,500, तो मुझे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि अभी किसी ने 20% के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं. Now if I want to buy all of these, I will have to pay 50 लाख. यहां से वैल्यूएशन डिसाइड हुई. इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए दिए. वेयर विल दिस 10 लाख रुपीज गो? ये 10 लाख रुपीज कहां जाएंगे? These 10 लाख रुपीज विल गो इनटू द कंपनी अकाउंट. कंपनी का अकाउंट अलग है. दे विल गो इनटू द कंपनी अकाउंट. इन तीनों के पर्सनल अकाउंट में तो नहीं जा रहे ना, इन तीनों के पर्सनल अकाउंट में तो नहीं जा रहे. सो इट विल गो इनटू द कंपनी अकाउंट. इट विल गो इनटू द कंपनी अकाउंट. राइट? इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए दिए, गए कंपनी अकाउंट में. इन्वेस्टर को मिले 20% शेयर्स. नई वैल्यूएशन डिसाइड हो गई. कैसे मिले एक इन्वेस्टर को 20% शेयर? हाउ डिड इन्वेस्टर गेट 20% शेयर्स? कंपनी इश्यूज 2500 न्यू शेयर्स टू इन्वेस्टर. 2500 न्यू शेयर्स वर इशूड टू द इन्वेस्टर बाय द कंपनी. ठीक है. अब उसके बाद सबका शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है, इन्वेस्टर के पास 20% है. इज द ट्रांजैक्शन क्लियर? इज द ट्रांजैक्शन क्लियर? ठीक है. इस ट्रांजैक्शन के अब कुछ फीचर्स नोट करते हैं. फीचर्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. नंबर 1, ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ कंपनी चेंज्ड. नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. एक्चुअली आई जस्ट विल कम बैक एंड सी इस ट्रांजैक्शन के क्या फीचर्स थे. नंबर 1, कंपनी की वैल्यूएशन चेंज हुई. राइट? सेकंड, न्यू शेयर्स वर इशूड बाय कंपनी. थर्ड, मनी केम टू कंपनी अकाउंट. ये तीनों फीचर्स हैं इस ट्रांजैक्शन के. वैल्यूएशन चेंज हुई, न्यू शेयर्स वर इशूड बाय कंपनी एंड मनी केम टू द कंपनीज अकाउंट. दिस इज नोन एज प्राइमरी फंड रेजिंग और प्राइमरी कैपिटल. याद रखना, फाउंडर्स ने कोई पैसे नहीं कमाए. फाउंडर्स डिड नॉट मेक एनी मनी. हमारे फाउंडर्स के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया है, कंपनी के अकाउंट में पैसा आया है. प्राइमरी फंड रेजिंग, प्राइमरी कैपिटल और फ्रेश इशू. Because fresh shares were issued by the company. This is one type of fundraising called primary fundraising. Primary fundraising. अब हमारे फाउंडर्स ने हमारे एंटरप्राइजिंग फाउंडर्स ने क्या किया? हमारे फाउंडर्स ने 10 लाख रुपए कंपनी अकाउंट में ले लिए. आफ्टर टेकिंग दीज 10 लाख रुपीज टू द कंपनी अकाउंट, दे यूज दिस टू ग्रो द बिजनेस. इन्होंने और लोगों को हायर किया, बिजनेस को बड़ा किया, मार्केटिंग करी, अपने ब्रांड को बड़ा किया. अगले साल क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर का बिजनेस लिखते हैं कंपनी का. रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. रेवेन्यू मतलब कंपनी नेक्स्ट ईयर, कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नेक्स्ट ईयर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड पेन्स वर्थ 50 lakhs. इन्होंने 50 लाख रुपए के पेन बेचे. प्रॉफिट इन्होंने किया 5 लाख. 5 लाख का प्रॉफिट किया. कंपनी हैज एक्सपेंडेड. ठीक है. अब मैं यहां पर खड़े होकर देख रहा था, यार कंपनी एक्सपैंड कर रही है. मान लो मेरे पास पैसा पड़ा है इस कंपनी में डालने के लिए. मुझे लग रहा है यार दिस कंपनी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. सो आई गो टू द फाउंडर्स एंड आई से कि देखो यार,
आई थिंक यू आर अ ग्रेट कंपनी, आप तीनों ने मिलके बहुत बढ़िया कंपनी बनाई है, यू आर एक्सपैंडिंग ऑल्सो, यू आर रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, आई थिंक योर कंपनी विल ग्रो फर्दर, आप मेरे से थोड़े और पैसे ले लो, यू टेक सम मनी फ्रॉम मी, जैसे आपने उस इन्वेस्टर से लिए थे आप मेरे से भी पैसे ले लो और आप मुझे कुछ शेयर्स दे दो। द थ्री ऑफ देम से कि सर देखो हमें ना कंपनी अकाउंट में पैसे अब नहीं चाहिए। Why are they saying no? Because if they issue more shares, if they issue more shares now, मान लो they issue 10,000 more shares to me, all of their shareholding pattern will go down. इन सबका shareholding pattern कम हो जाएगा, right? All of their shareholding pattern will go down if they issue more shares. If they issue more shares, if they do any further fresh issue, मान लो they issue 2,500 new shares to me, they issue 2,500 new shares to me, their shareholding pattern will go down. Their shareholding pattern will go down, right? तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न डाउन होगा वो कहेंगे नहीं सर हमारी कंपनी में हमारे इतना परसेंटेज ओनरशिप है, अगर इस कंपनी का 20% मेरा है तो इस 5 लाख का भी 20% मेरा है। एक इन्वेस्टर था जिसने 20% खरीदा था, ही विल नाउ गेट 20% ऑफ द प्रॉफिट्स आल्सो बिकॉज ही इज 20% ओनर नाउ। आपने इक्विटी खरीद ली तो आप 20% के ओनर बन गए। तो मैंने कहा कि यार प्लीज मुझे ये फंड्स दे दो। तो फाउंडर्स ने कहा नहीं सर कंपनी बढ़िया चल रही है, कंपनी के अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा है, हमें कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है बट मुझे तो कंपनी के शेयर्स चाहिए। देन वन ऑफ दीज फाउंडर्स सेड सर मुझे पर्सनल पैसे चाहिए, आई वांट मनी। समझ आ रही है सिचुएशन में क्या कह रहा हूं? मैं गया, मैंने भी कहा यार मुझे भी इन्वेस्टर की तरह पैसा डालना है आपकी कंपनी में। ये कहते नहीं सर हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस मनी इन आवर कंपनी, हमें जरूरत ही नहीं है पैसे, कंपनी अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं, जरूरत क्या करोगे आप पैसे डाल के, जितने पैसे पड़े हैं उतने ही हम यूज नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा नहीं यार शेयर्स तो चाहिए। अब देखो तो वन ऑफ दीज फाउंडर्स लेट्स से अदिति कम्स टू मी एंड सेज कि सर नहीं आई वांट मनी, आप मेरे शेयर्स खरीद लो। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, व्हाट इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न? आदिल हाउ मच शेयर्स? 3400 शेयर्स, अदिति 3300 शेयर्स, सौम्या 3300 शेयर्स, इन्वेस्टर 2500 शेयर्स, टोटल 12,500 शेयर्स। यही है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अदिति सेज टू मी कि सर आपको अगर अभी तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अब अदिति सेज टू मी कि सर वी डोंट नीड मनी इन द कंपनीज अकाउंट, हमें कंपनी अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, बट I can sell you 1250 of my shares. I can sell you 1250 shares. मैं अपने 1250 शेयर आपको बेच सकती हूं। एंड फॉर दीज 1250 शेयर्स यू मस्ट पे, फॉर दीज 1250 शेयर्स यू मस्ट पे 20 लाख रुपीस। मैं आपको 1250 शेयर्स बेच सकती हूं बट यू हैव टू पे 20 लाख रुपीस। मैं कहता हूं नहीं यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, 1250 शेयर के लिए बहुत ज्यादा है, चलो 10 लाख पे कर दूंगा। वो कहती हैं ठीक है, you pay me 10 lakh rupees, you pay me 10 lakh rupees for these 1250 shares, for these 1250 shares। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, 1250 shares is how much percent of the company? कितना परसेंट है? 10%। I have now acquired 10% shares of the company, I have now acquired 10% shares of the company for rupees 10 lakh। तो मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन क्या है इस कंपनी के शेयर्स में? पहले एक ट्रांजैक्शन हुई थी जहां 20% शेयर खरीदे गए थे 10 लाख रुपए के लिए। अब एक ट्रांजैक्शन हुई है इस कंपनी में जहां 10% शेयर खरीदे गए हैं 10 लाख रुपीस के लिए। सो नाउ रिसेंटली, आज ही, टुडे 10% शेयर्स हैव बीन बॉट फॉर 10 लाख रुपीस। सो व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी नाउ? व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी नाउ? क्या वैल्यूएशन होगी कंपनी की?
1 crore. Company is now worth rupees 1 crore. So valuation of company is now 1 crore rupees. 1 crore rupees is valuation. Valuation of company is 1 crore rupees. I gave 10 lakh rupees. Where did the money go? मनी कहां जाएगा? अदिति के अकाउंट में. मनी अदिति के अकाउंट में जाएगा. ऑफ कोर्स अदिति ने अपने शेयर्स बेचे हैं तो अदिति के अकाउंट में जाएगा. दीज वर अदिति's प्रॉपर्टी. अदिति सोल्ड 1250 शेयर्स टू मी, सो अदिति के अकाउंट में जाएगा. राइट. व्हाट इज द न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न? अब न्यू पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है? न्यू पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग इज आदिल 3400, सौम्या 3300, investor 2500, Aditi will have 2150 shares remaining. Right, she will have 2050 shares remaining. 2050 because 1250 तो उन्होंने मेरे को बेच दिए, and me I have 1250 shares. I have 1250 shares. टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स तो अभी भी सेम है. टोटल शेयर्स तो अभी भी सेम है. टोटल शेयर्स आर द सेम. So I can write that in this transaction, in the second transaction, company did not issue fresh shares. कोई नए शेयर्स नहीं बनाए कंपनी ने. इस ट्रांजैक्शन से पहले भी 12,500 शेयर थे इस कंपनी के, अब भी 12,500 हैं. आपस में ट्रांजैक्शन चेंज हो गई है. आपस में some dealing has changed. Some dealing has changed within this. This type of transaction is called secondary transaction or secondary sale. What are the features of this transaction? What are the features? सामने अगर मैं लिखूं secondary sale की, तो पहला valuation तो यहां भी चेंज हो रही है. Valuation of company has changed. But second, new shares by company? No. Money goes into company account? No. This is secondary sale or secondary capital या secondary fundraise. समझ आ रहा है? Primary is where shares you are buying the new freshly issued shares from company. Here you are buying shares दो अदिति के पास पहले से हैं. समझ आया? Now let's say जैसी ये कंपनी थी ABC प्राइवेट लिमिटेड. इस कंपनी ने पहले साल कुछ रेवेन्यू किया. लेट्स से इस कंपनी ने पहले साल रेवेन्यू किया था कितना? 10 लाख रुपए. प्रॉफिट किया था 1 लाख रुपीस. इसने कुछ इन्वेस्टमेंट ली, इन्वेस्टर को 20% शेयर्स दिए. फिर अगले साल कुछ रेवेन्यू किया, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट ली. राइट. सबसे पहले इन द फर्स्ट टाइम दिस कंपनी नीडेड ओनली 10 लाख रुपीस. जब इन्वेस्टर को 20% रुपए दिए थे, 20% शेयर्स दिए थे, कंपनी ओनली नीडेड 10 लाख रुपीस. ये लोग कह रहे थे यार हमें बस 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे दो. लेट्स से उसके बाद क्या हुआ? कंपनी गॉट अ रेवेन्यू ऑफ 50 लाख एंड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख. अब मेरी स्टोरी भूल जाओ अभी के लिए, मेरा वाला पार्ट भूल जाओ अभी के लिए. लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी. अब हमारे फाउंडर्स को लगता है कि यार हमने तो 10 लाख रुपए लेके कंपनी को 5 टाइम्स कर दिया. हम तो इस कंपनी को बहुत बड़ा कर सकते हैं. लेट्स रेज सम सीरियस इन्वेस्टमेंट. तो ये एक और इन्वेस्टर के पास गए. इन्वेस्टर को कहा सर आप हमें 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दो. 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दो. अब फिर से इन्वेस्टर और इनके बीच में झगड़ा होगा. ऑल ऑफ दिस इज प्राइमरी. सेकेंडरी वाले को भूल जाना. ऑल ऑफ दिस इज प्राइमरी. ठीक है, ये सारी प्राइमरी बात हो रही है. फिर इन्वेस्टर और इनके बीच में झगड़ा होगा. इन्वेस्टर कहेगा
मैं अब 1 करोड़ के लिए, अब तो ऑब्वियसली कंपनी हैज बिकम मच बेटर, मच बिगर, तो इन्वेस्टर कह रहा है मैं 1 करोड़ के लिए 5% लूंगा, ये कह रहे हैं नहीं सर हम 1 करोड़ के लिए 1% देंगे। फिर झगड़ा हुआ आपस में, फिर ये बात हुई कि अच्छा इन्वेस्टर विल गेट 5%, investor will get 5%, further they will dilute, they will give 5% for 1 crore। इनकी वैल्यूएशन और बढ़ गई क्योंकि अब 5% 1 करोड़ में बढ़ा है। देन लेट्स से दे स्टार्ट डूइंग अ रेवेन्यू ऑफ 10 करोड़, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। अब इन्होंने कहा यार हमें और बड़ा करना है कंपनी को। दे गो टू अनदर इन्वेस्टर, इस इन्वेस्टर से दे रेज 10 करोड़ ऑफ फंडिंग। 10 करोड़ देने वाले लोग हैं इंडिया में, 10 करोड़ की फंडिंग ली, इस इन्वेस्टर को इन्होंने 10% शेयर्स दे दिए। यहां तक भी बात चलती जा रही है, इट इज स्टिल हैपनिंग। अब कंपनी बहुत ही बड़ी हो गई, 100 करोड़ का रेवेन्यू करने लगी, 30 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी। $100 करोड़ का रेवेन्यू करने लगी, 30 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी। अब ये कहते हैं यार नाउ आई वांट टू मेक दिस द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, आई वांट टू मेक दिस द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, नाउ आई वांट टू रेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़, मुझे 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, आई विल मेक इट द बिगेस्ट पेन कंपनी इन द वर्ल्ड। 1000 करोड़ एक इन्वेस्टर के पास देने को नहीं है। Who has this sort of money? Who has this sort of money in India to give 1000 crore? अंबानी जी मत बोलना, लॉजिक लगाना। Who can give 1000 crores at once to any company? Public can give. Public, people. मैं 5 लाख दूं, आप 5 लोग दो, कोई और 10 लाख दे, लोग दे सकते हैं। Now they will take their company public. Till now they have been selling shares to investors. Private meetings में मीटिंग होती है इन्वेस्टर के साथ, आपस में ये बात करते हैं, एक शेयर सेल कर देते हैं या इतने % शेयर बेच देते हैं वगैरह। Now they are saying we want to sell our company's shares to the public. This will be called the event of an initial public offering. The first time they are selling their shares to the public. Initial public offering or IPO. IPO में यहां पर इन्होंने कुछ शेयर्स बेचे। ऑब्वियसली सारे 1000 करोड़ कोई एक पर्सन नहीं खरीदेगा, राइट? कोई लेट्स से कहते हैं कि हम 1000 करोड़ के लिए 10% शेयर्स दे रहे हैं, या हम 1000 करोड़ के लिए 20% शेयर्स दे रहे हैं, राइट? not one person will give these 1000 crores, right? कोई थोड़े ज्यादा देगा, कोई थोड़े कम देगा, उस बेसिस पे ये पर्टिकुलर परसेंटेज आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये पर्टिकुलर परसेंटेज आपको मिल जाएगी। लेट्स से देयर इज पर्सन ए, in this initial public offering, when this company now asks people for money कि यार आप लोग हमें पैसे दे दो, there is person A gives let's say 10 crores, और let's say बिल्कुल आसान एग्जांपल ले लेते हैं, person A gives 100 rupees and gets 1 share, एग्जांपल ले रहा हूं। person B also gives 100 rupees and gets 1 share। ऐसे करके बहुत सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसे देते हैं, उनको एक एक शेयर मिल जाता है। नॉट 1%, दिस इज नॉट 1%, दिस इज 1 शेयर। दिस इज आईपीओ। आजकल बहुत कंपनीज का आईपीओ हुआ है। यू हैव सीन जोमैटो हैज डन इट्स आईपीओ, स्विगी हैज डन इट्स आईपीओ, राइट? दिस इज दैट आईपीओ इवेंट, दिस इज दैट आईपीओ इवेंट। आईपीओ क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो आईपीओ क्लियर हुआ, समझ आया आईपीओ में हो क्या रहा है? सारी रेगुलेशंस वगैरह पढ़ेंगे, आई जस्ट वांट कि आपको बेसिक्स पता हो, ताकि आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस। आईपीओ क्लियर हुआ? आईपीओ में होता क्या है? अगर वैल्यूएशन की कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो लेक्चर दोबारा देखो। इट कैन नॉट बी सिंपलर देन दिस, इट कैन नॉट बी सिंपलर देन दिस। मैं अभी लोगों से वैल्यूएशन की कैलकुलेशन कराता हूं,
दिस इज द ट्रांजैक्शन, 20% शेयर्स आर बीइंग सोल्ड फॉर 1000 करोड़। क्या वैल्यूएशन है भाई कंपनी की, बताना जरा एक बार, क्या वैल्यूएशन है? सिंपल, तो हो तो रहा है क्लियर, सही तो बता रहे हो, क्या दिक्कत है? 5000 करोड़। एनीवे अब ये शेयर पब्लिकली ट्रेड हो रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट पे आ चुका है। जो हम स्टॉक मार्केट पे शेयर्स देखते हैं कि रिलायंस का शेयर इतने का है, इसका शेयर इतने का है, दैट इज दैट नंबर, दिस इज दैट नंबर। ठीक है, लेट्स से आज इस कंपनी का आईपीओ हुआ, इस कंपनी का एक शेयर मिलता है 100 रुपए का, 100 रुपए का। कल इस कंपनी का एक शेयर हो जाता है 200 रुपए का, 1 शेयर ऑफ दिस कंपनी बिकम्स 200 रुपीज। ऐसा तो है नहीं कि एक ही शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। टुडे दिस कंपनी स्टार्टेड इट्स जर्नी इन द पब्लिक मार्केट, आज इस कंपनी की पब्लिक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई। इसने आज अपने शेयर सबसे पहले पब्लिक में बेचे, तो एक शेयर 100 रुपए का बिका। अगले साल एक शेयर 200 रुपए का बिकेगा। लेट्स से एक शेयर 200 रुपए का बिक रहा है, राइट? सो आई कैन से that when one share of this company was sold for 100 rupees, valuation was 5000 crores. Now when I'm saying that one share is being sold for 200 rupees, what will be the valuation? अब क्या वैल्यूएशन होगी? अब इस कंपनी का एक शेयर 200 रुपए का बिक रहा है, क्योंकि लोग आपस में भी ट्रांजैक्ट करेंगे, पर्सन ए ने पर्सन बी को बेचा, पर्सन बी ने पर्सन ए को बेचा। गुड, वैल्यूएशन इज 10,000 करोड़। और ये 100 से 200 होगा कैसे? 100 से 200 कैसे होगा? कंपनी कोई नए शेयर अब इशू नहीं कर रही है, लोगों ने देखा, दिस वॉज ईयर वन, लोगों ने देखा कि यार ये तो कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, इस कंपनी में तो रोज ही प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में बैरक ओबामा भी इनका पेन यूज कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी इनका पेन यूज कर रहे हैं, राइट? आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो यूजिंग द पेन ऑफ दिस कंपनी, इसकी तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो पर्सन सी विल कम टू पर्सन ए एंड से कि सर मैं ना आपसे ये शेयर 200 रुपए में खरीद लूंगा, आपने 100 में खरीदा था, कोई बात नहीं, आप मुझे 200 में दे दो, मुझे लग रहा है और फ्यूचर में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये और बड़ा होगा। रिमेंबर स्पेकुलेटिव डिमांड, my expectation is that this asset will become better in future, so I will buy it today. Speculative demand was also about my expectation of future, this is also about my expectation of future, कि आज डबल में दे दो चाहे मुझे पता है ये डबल का 4 टाइम्स होना है, राइट? अब ये कैसी ट्रांजैक्शन है? क्या इस ट्रांजैक्शन में पर्सन ए हैज सोल्ड शेयर टू पर्सन सी फॉर ₹200, हैज द कंपनी रिसीव्ड मनी इन दिस ट्रांजैक्शन? नो। ये चलो आप बताओ ये किस टाइप की ट्रांजैक्शन है? पर्सन ए के पास जो 1 शेयर था उसने पर्सन सी को बेच दिया 200 रुपए में। विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज दिस? विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज दिस? सेकेंडरी ट्रांजैक्शन, सेकेंडरी है ना, कंपनी को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है? अच्छा, सॉरी लास्ट थिंग, जस्ट लास्ट थिंग, let's say I have 1 share of ABC Private Limited. I purchase this share, मेरे को ये शेयर मिला है, या इस शेयर का प्राइस अभी स्टॉक मार्केट में इस शेयर का प्राइस है 100 रुपए, ठीक है? अब दिस 1 शेयर, मान लो मेरे पास 1 शेयर है, टोटल शेयर्स ऑफ दिस कंपनी नाउ, इस टाइम पे टोटल शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स ऑफ दिस कंपनी आर लेट्स से 10 lakhs, 10 लाख शेयर हैं इस कंपनी के।
10 लाख शेयर हैं इस कंपनी के, ठीक है। अच्छा, अब नाउ दैट मीन्स आई एम हाउ मच ओनर ऑफ दिस कंपनी? I am how much owner of this company? 0.00001%. डिवाइड कर देना, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल, दिस माइट नॉट बी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरो, थोड़ा जीरो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ब्रॉडली, या चलो एग्जैक्टली कर लेते हैं, लेट्स डू इट एग्जैक्टली। 1%, 0.1, 0.01, 0.01, एक और 0.0, ठीक है, 4 zeros. I am this much percentage owner of this company. मेरे पास एक शेयर है 10 लाख में से, तो मैं इतने परसेंट का ओनर हूं, ठीक है। एंड लेट्स से इस कंपनी का प्रॉफिट भी है, इस कंपनी का प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपए, इस कंपनी का प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपए, राइट। सो नाउ आई शुड गेट दिस मच परसेंटेज ऑफ 10 करोड़ बिकॉज आई एम दिस मच ओनर, आई एम दिस मच ओनर, सो आई शुड गेट दिस मच परसेंटेज ऑफ 10 करोड़, या चलो हम प्रॉफिट मान लेते हैं 1 करोड़ है, सॉरी, लेट्स जस्ट अज्यूम प्रॉफिट इज 1 करोड़, सो आई शुड गेट दिस मच परसेंटेज ऑफ 1 करोड़, मैं इतना ओनर हूं, कंपनी के टोटल शेयर 10 लाख हैं, मेरे पास एक शेयर है, तो मैं इतना परसेंट ओनर हूं, कंपनी का टोटल प्रॉफिट इतना है, तो मुझे इस प्रॉफिट का इतना परसेंट मिलना चाहिए, दिस परसेंट ऑफ 1 करोड़ इज लेट्स से ₹10। तो शेयर प्राइस इज 100, earnings that I make on this share, earnings that I make on this share is 10 rupees. Earnings that I make on this share is 10 rupees. From this I can calculate something called price to earnings ratio, PE ratio. Price कितना है 100, earnings कितनी है 10, so it will be 100 by 10 or 10 only. Price to earnings ratio, ब्रॉडली मतलब समझ आया प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का, पीई रेशियो का ब्रॉडली मतलब समझ आया, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मीनिंग इज क्लियर? चलो नाउ लेट मी show you something wonderful. ये देखो over the last 1 month, this is Reliance share price. पहले थोड़ा शेयर ऊपर गया, फिर नीचे, ऐसे शेयर गया है। ये मूवमेंट कैसे होती है ये मैं आपको समझाऊंगा, दिस आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस मूवमेंट हैपेंस। I'll tell you how this movement happens, but look at some things written here. Market cap, ये क्या है? Valuation of Reliance is written here. अगर मुझे शेयर प्राइस पता है, if I know one share is worth X, I know total shares का जो नंबर है वो है Y, तो X into Y is the valuation or the market cap. ऐसे ही कर रहे थे हम, ये देखो मार्केट कैप लिखा है, पीई रेशियो लिखा है, शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग्स इज 22.51. समझ आया? इज दिस क्लियर? These were the basics of capital market. On Monday we will now study the actual things that we need for the exam, but I think you will all agree this I will not explain again. बिल्कुल बेसिक चीज है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब, ठीक है। तो अब अगर मंडे को कोई आया जिसने आज की क्लास मिस करी होगी और वो उसने कहा कि सर इसको रिपीट करो, आपका टाइम वेस्ट होगा, यू हैव स्पेंट योर वैल्यूएबल टाइम ऑन सैटरडे स्टडिंग दिस एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, राइट। तो अब सैटरडे को कोई नहीं बोलेगा कि इसको रिपीट करना है, और मंडे को कोई नहीं बोलेगा इसको रिपीट करना है। वी विल नाउ स्टडी कैपिटल मार्केट्स, वी नाउ नो द मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स,
right? Now when I say primary sale, you should know what it means. When I say secondary sale, you should know what it means. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, we'll end this class here today.